welcome to Prodigy IAS. Today I'm here with again Daily MCQ Express containing 5 new questions based on current affairs. So let's quickly start. Question number 1. Consider the following statements with reference to the sea urchins. The statements given are they are a part of group of marine invertebrates known as echinoderms. They possess hard exoskeletons typically covered with movable spines. So we have to see which of the above statements are correct. Now, proceeding towards the answer, we need to know what are echinoderms. Echinoderms क्या होते हैं? Echinoderms are a diverse group of invertebrates. Marine invertebrates. Marine invertebrates are those sea animals which don't have any spinal cord. So echinoderms उसी का एक डाइवर्स ग्रुप होता है एंड सी अर्चिन्स बिलोंग टू दीज एकिनोडर्म्स कैटेगरी. दे आर अ ग्रुप ऑफ स्पाइनी स्किन्ड मरीन इन्वर्टिब्रेट्स, राइट. अदर एकिनोडर्म्स कौन कौन से होते हैं? स्टारफिश, सी कुकुम्बर्स, सैंड डॉलर्स, brittle stars. These are the examples of echinoderms. What is the body structure of sea urchins? They have a globular body with a radial arrangement of organs. I'll show you a picture for this. You can have a look at this picture. They have a globular body with a radical arrangement of organs inside. Right? Now, they have 2 feet. If you can see, they have a 2 feet below this. Exoskeleton, they are composed of a hard exoskeleton or test. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो skeleton है, जो skeleton hota, that is very hard and that is called exoskeleton, right? And they have movable spines all over their surface, long movable spines, right? So if we see all this information and see the questions, so the first statement is absolutely correct and the second statement is also correct. So which of the option falls for us? Both 1 and 2. So the answer to this question is C. Now moving towards the next question, consider the following statements regarding listeria. It is a type of bacteria that is found in soil, plants, and water. It causes an infection known as listeriosis, which is specifically affects children under the age of 15. These two statements are given for this question, and we have to see which statements are correct. So, before clicking the answer, before seeing what is the correct answer, we should know what is listeria. So, the medical name of listeria is Listeria monocytogenes. What is its nature? It is commonly found in soil, vegetation, sewage, and feces of animals and humans. Wherever there is dirty, swampy area, soil, vegetation, and the feces of animals and humans and sewage, there could be the presence of Listeria bacteria, right? What it can lead to? It can lead to an infection known as listeriosis, right? And it is always infected through contaminated food. What are the foods which are at high risk for it? Milk, raw sprouts, dairy meats, hot dogs, soft cheese, smoked seafood. These are the foods which are very much vulnerable for the infection with listeria bacteria. What are the general symptoms for it? uh, Unfortunately, most individuals which are exposed to listeria, they do not show any symptoms. In fact, the symptoms do not appear up to 2 months after exposure, which makes it difficult to trace the source of infection, right? और इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? अगेन द कॉमन सिम्टम्स आर लाइक वॉमिटिंग, नोजिया, क्रैम्स, सीवियर हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, फीवर. दीज आर इट्स कॉमन सिम्टम्स. ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि जो इन्फेक्शन है वो कितना सीवियर है. टिपिकली जो है एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, राइट, विच आर यूज फॉर कॉमन स्टमक इन्फेक्शन. तो अगर हम इन सारी इन्फॉर्मेशन को देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज हाफ करेक्ट. लिस्टेरोसिस तो कहते हैं इसके इन्फेक्शन को, बट इट अफेक्ट्स ऑल द इंडिविजुअल्स, नॉट ओनली द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15. सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट. सो द आंसर इज 1 only. So the answer to this question is A. Now moving towards the third question. With reference to the Mercosur, consider the following statements. The Common Mercosur Council, which is called CMC, it is the highest decision-making body of Mercosur. Second, the official languages are Spanish and Portuguese. The headquarters of Mercosur are located in Buenos Aires, Argentina. ये तीनों स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड फॉर दैट वी नीड टू नो व्हाट इज मर्कोसर. मर्कोसर इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक इन लैटिन अमेरिका. ये लैटिन अमेरिका में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक बनाया गया है जिसके 4 पार्टिसिपेंट्स हैं: अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे एंड उरुग्वे. बोलिविया एंड वेनेजुएला भी इसके एडिशनल मेंबर्स हुए हैं, बट वेनेजुएला को सस्पेंड कर दिया गया 2016 में. व्हेन इट वाज क्रिएटेड इन 1991, और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं वो स्पेनिश और पोर्चुगीज होती है. नाउ व्हाट इज सीएमसी? सीएमसी क्या है? कॉमन मार्केट काउंसिल जिसे कहा जाता है. इट इज वन ऑफ द प्राइमरी डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ मर्कोसर.
बर्गसर की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है प्राइमरी, वो सीएमसी कहलाती है, और इसका काम होता है गाइडिंग एंड ओवरसीइंग द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ मेनी मेंबर कंट्रीज। जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके इंटीग्रेशन को देखना, उनकी गाइडेंस को देखना, और ये इंश्योर करना कि वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड और नॉट, राइट। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फ्री ट्रेड एंड द स्टडी मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पीपल अमंग मेंबर कंट्रीज, ताकि इनकी एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, राइट। So it basically focuses on economic integration. Up where India stands in it, India-Mercosur Agreement in 2004, इंडिया और मर्कसर ने पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था टू इनहांस आर इकोनॉमिक टाइज। ये एग्रीमेंट जो डिज़ाइन किया गया था, ये इसलिए डिज़ाइन किया गया था सो दैट वी कैन एक्सेस टू ईच अदर मार्केट्स बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स। हम टैरिफ्स को रिड्यूस करके एक दूसरे के मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सके ऑन अ सेलेक्ट नंबर ऑफ गुड्स, कुछ सेलेक्टेड गुड्स के लिए, और हमारे जो ट्रेड रिलेशनशिप्स है वो इम्प्रूव हो सके अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक के साथ। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मॉन्टेवीडियो, उरुग्वे में। सो अगर हम इन सारी इन्फॉर्मेशन को देखें, राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। कॉमन सीएमसी इसका हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सेकंड इज करेक्ट, स्पेनिश और पोर्चुगीज इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हेडक्वार्टर्स इज नॉट इन अर्जेंटीना। सो स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, right? Now, moving towards the question number 4. With reference to exercise Conquest, consider the following statements. It is a multinational military exercise aimed at enhancing peacekeeping capabilities. Second, exercise started as a bilateral event between USA and Mongolia, and the latest edition of exercise was held in India. ये तीनों statements दी गई हैं. Now we will check which of the statements are correct. अब सबसे पहले हम जानेंगे खान क्वेस्ट है क्या। ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे नेशंस मेंबर्स हैं, और ये इसलिए डिज़ाइन की गई है ताकि हम पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज हम इन्हांस कर सके अमंगस्ट वेरियस नेशंस विच आर अ मेंबर ऑफ इट, राइट। तो इसका फोकस क्या है? पीस कीपिंग ऑपरेशंस है, सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है, ह्यूमैनिटेरियन एड है इन केस ऑफ एनी कैलामिटी, एंड डिजास्टर रिलीफ है। When it got founded, when it was incepted, it began in 2003 as a bilateral event between US and Mongolian armed forces, right? So it was incepted in 2003. Now, how it evolved? It evolved to a multinational peacekeeping exercise in 2006. How Indian Army is involved? Indian Army sends around 40 personnel. कहाँ से? मेड्रॉस रेजिमेंट से अराउंड 40 पर्सनल्स आर सेंट। कुछ एडिशनल मेंबर्स भी भेजे जाते हैं हमारी अदर आर्म्स एंड सर्विसेज में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक वुमेन ऑफिसर होती है और 2 वुमेन सोल्जर्स होते हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इसको बनाने का? इंडियन आर्म फोर्सेस फॉर कीपिंग पीस कीपिंग मिशंस इन मल्टीनेशनल सेटिंग। हम अपनी इंडियन आर्म फोर्सेस को मल्टीनेशनल सेटिंग में यूज़ कर सके फॉर पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज, राइट, एंड मिलिट्री रेडीनेस फॉर पीस सपोर्ट ऑपरेशंस। और हम लोग रेडी रहे फॉर पीस सपोर्ट ऑपरेशंस अंडर द चैप्टर 7 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। लास्ट थिंग, द लास्ट एडिशन ऑफ खान क्वेस्ट वाज हेल्ड इन 2024 इन उलान बातार, मंगोलिया। तो अगर हम इन सारी स्टेटमेंट्स को देखें, तो जो क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। तो देखें तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट ओनली। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, right? Now we will move towards the next question, which is, consider the following statements regarding the ketamine pill. It interrupts the pain signals in the spinal cord and stimulates brain's reward pathways, right? Second, it is classified as a schedule X drug in India, subject to strict control and monitoring on a case by case basis. अब हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है, जिसके लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कीटामाइन पिल होती क्या। अच्छा, कीटामाइन पिल, इसका कॉमन नेम कीटेलर है, राइट। इट इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक टू प्रिवेंट पेन ड्यूरिंग सर्जरीज के वक्त पेन को कंट्रोल किया जा सके, सर्जरी सक्सेसफुली परफॉर्म की जा सके, तो हम एक एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, उसमें कीटामाइन बहुत यूज़ की जाती है। बट इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स डिसोसिएटिव एंड साइकोडेलिक प्रॉपर्टीज। आई शो अ पिक्चर फॉर दिस। यू कैन सी कीटामाइन की साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। हेलुसिनेशंस है, डिसोसिएशन है, कन्फ्यूजन है, यूफोरिया है। फिजिकल इफेक्ट्स क्या होता है? अगर इसका एक्सेसिव यूज़ किया जाता है किसी इंडिविजुअल पर, तो इमोबिलिटी फील हो सकती है, स्लोड ब्रीदिंग होगी, डिफिकल्ट स्पीकिंग होगी, द पर्सन कैन फील अ फ्लोटिंग सेंसेशन। एक्सट्रीम यूज़ में क्या होता है? हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, साइकोसिस होता है, ब्रेन डैमेज, सीजर्स। तो दीज आर इट्स implications. These are its dissociative properties. अब mechanism क्या है? How it prevents pain. It blocks NMDA receptors in the brain and spinal cord. Right? I'll show a picture to explain this. As you can see, जो NMDA receptors होते हैं, कीटामाइन लेने के बाद ये receptors कीटामाइन इनको ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है
कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमिशन होता है, पेन हमारे ब्रेन के सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचते ही नहीं, एंड वी डो नॉट फील पेन आफ्टर टेकिंग द कीटामाइन बिकॉज इट ब्लॉक्स एनएमडीए रिसेप्टर्स। और ये क्या करता है, जो हमारे ग्लूटामेट होते हैं उनको स्पाइक कर देता है, जिससे हमारे जो ब्रेन के पाथवेज हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, राइट। हाउ इट इज डिराइव्ड, इट इज डिराइव्ड फॉर फेनिसिलाइडीन पीसीपी, अ हालोसिनोजेनिक ड्रग, राइट। सो ये सारी इंफॉर्मेशन थी अबाउट कीटामाइन। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस में क्या क्या करेक्ट है। यस, फर्स्ट इज करेक्ट, इट interrupts pain signals. Second, yes, it is classified as a schedule X drug in India. So both these statements are correct. So the answer to this question is C, both 1 and 2. So thank you everyone. I'll be coming again with another 5 significant questions based on current affairs. Till then, stay tuned for more updates.